Assalamu alaikum ji. I am Dr. Zafrullah Khan and I am here with a presentation which is primarily just sharing of experience. Obviously we are not here to teach, we are not here to just inculcate the knowledge in other minds. We are here to share and learn, as always. The topic is very important because this is something we come across every day, and we include myself, we include ये जो फ्रंट पे सीनियर्स बैठे हुए हैं और वो सारे कोलीग्स जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, all those who are practicing, we every day come across something which is antimicrobial resistance. And I would like to ask from the participants of this hall, is it really an ultimate fact or it is a myth? कितने हम में से ऐसे हैं who are really facing the challenge of antimicrobial resistance? All the respectables, हम सारे practice करते हैं and we all see it every day. हम मुसीबत बनी हुई है, आप यकीन करें. I am a dermatologist. सबसे आसान चीज़ जो मैं आमतौर पे हम अपनी प्रेजेंटेशन में भी और जहाँ पे भी कहीं गैदरिंग होती है, शेयरिंग होती है, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट की जो सबसे आसान चीज़ समझी जाती है, जो नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट या हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो बड़ी जल्दी उस पर पहुँच जाते हैं, वो स्केबीज़ है. तकरीबन स्केबीज़ को हम नहीं समझते क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें आपको टाइम चाहिए होता है डायग्नोस करने के लिए, या कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस है. आप यकीन करें स्केबीज़ को ट्रीट करना हमारे लिए इस वक्त मुसीबत बना हुआ है. स्केबीज़ के पेशेंट नहीं ठीक हो रहे. बाकी मतलब व्हाट टू टॉक ऑफ मेनी थिंग्स. आई वुड प्राइमरीली बी फोकसिंग ऑन फंगल इन्फेक्शंस ओवर हियर, लेकिन let it be fungal infection, let it be bacterial infection, let it be viral infection, every one of us faces it every day. So here we will discuss few of the things. ये just मैं एक sharing के लिए किया है कि it's not only the fungal infection जिसमें हमें resistance को जो है ना वो face करना पड़ रहा है. We face it every day. Let it be typhoid, let it be lower respiratory tract infection, upper respiratory tract infection, भले वो fungus की infection है या even scabies है. मैं अभी कुछ देर पहले किसी से बात कर रहा था, अभी बैठे हुए हम लोग उधर, कि टाइफॉइड को डायग्नोज करना किसी ज़माने में मसला था, ट्रीट करना तो प्रॉब्लम ही नहीं था. एंड नाउअडेज डायग्नोज करना तो मसला जो है वो अपनी जगह, लेकिन ट्रीट करना उससे बड़ी मुसीबत बना हुआ है, उससे बड़ा मसला बना हुआ है. एंड वी विल जस्ट शेयर few of the factors why are we facing this every day and how can we solve this. Obviously I am not going to give you a solution. ना मेरे पास कोई ऐसी कोई अलादीन की जो है ना वो चिराग है कि मैं एक solution देने जा रहा हूँ, लेकिन it is just a sharing ताकि हम इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि how can we reduce and minimize all these issues which we are facing every day. So I think at the end of this discussion we would be able to understand dermatophytic infection होते क्या है, how we differentiate among different things, and how can we control or reduce the resistance we are facing every day. Well, ringworm or dermatophytic infection जिसको आमतौर पे हम टीनिया बोल देते हैं सारे, primarily when we call it as dermatophyte is basically infection in the upper layer of the skin. Sometimes can also involve hairs and mucosae. Similarly, this is a data which is showing the incidence of fungal infection, how common it is, and I hope we have much more incidence than what is written over there. Dermatology के बारे में ना अक्सर हमें बड़ी confusions होती हैं. मैं honestly with थोड़ी सी माजरत, लेकिन मसला ये होता है कि जब हमें स्किन के ऊपर कोई रैश नज़र आता है ना, तो हमें सबसे पहले ये लगता है कि ये स्टीरॉइड इसको हल करेगा. और ऑन दी अदर साइड what we observe it in routine कि अगर हमें नहीं समझ आ रही तो हम ये समझते हैं कि स्टीरॉइड, डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी तो स्टीरॉइड ही लगवाना है, तो हम खुद ही लिख देते हैं. I would request from this forum कि प्लीज़ हम कुछ ऐसा करें कि अगर हम मरीज़ का फ़ायदा नहीं करने जा रहे हैं तो कम से कम हम मरीज़ का नुकसान ना करें. This is the prime motive of the practice. फ़ायदा जितना हो सकता है, ऑब्वियसली हम जो भी लिखते हैं, हम जो भी प्रेस्क्राइब करते हैं वो नेक नीयती से करते हैं, लेकिन वी नीड टू बी श्योर कि अगर हम ज़्यादा कंफर्म नहीं है तो अगर हम कोई किसी तरीके से अगर हमें लगता है कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट या कोई नुकसान हो सकता है मरीज़ का, तो वी मस्ट अवॉइड दैट. अगर हम ये करना शुरू कर देंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी विल प्रॉबली बी स्टार्टिंग
we will probably be starting controlling all these issues of जो हमें हर रोज जो है वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में देखने में मिल रहे हैं. अब डर्मेटोलॉजी इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट. वैसे तो शायद हम सबको ना वो बड़ी मुश्किल टर्म्स लग रही होती हैं डर्मेटोलॉजी की, लेकिन आप यकीन करें वंस यू अंडरस्टैंड तो हर टर्म अपने अंदर बता रही होती है कि इसका मतलब क्या है. जस्ट लाइक ये सारी एक चीज कॉमन हम सबको नजर आ रही है, टीनिया, दैट स्टैंड्स फॉर फंगल इन्फेक्शन. अगर वो टीनिया बॉडी के ऊपर किसी जगह पे है तो कॉर्पोरस है, सर में किसी जगह पे चला गया तो कैपिटस है, अगर वो दाढ़ी वाले एरिया में आ गया हुआ है तो वो टीनिया बार्बी है, अगर वो ग्रॉइन एरिया में आ गया हुआ है तो वो टीनिया क्रूरस है, अगर वो हमारे नाखून के ऊपर आ गया है तो वो टीनिया अंगुम है, वगैरह वगैरह. ऑब्वियसली आई एम नॉट हियर टू टीच ऑल दीज टीनियाज, लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. Tinea corporis is basically fungal infection of any part of the body other than few areas जो designated हैं. स्कैल्प के अलावा, ग्रॉइन के अलावा, नेल्स के अलावा, म्यूकोजी के अलावा, बॉडी के ऊपर अगर किसी भी जगह पे फेस के अलावा फंगल इन्फेक्शन आती है तो वी कॉल इट एज टीनिया कॉर्पोरिस. एंड दिस इज वन ऑफ द पिक्चर. लेट मी हैव सम इनपुट. अगर ये चीज हमें किसी पेशेंट के ऊपर नजर आती है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? क्या नजर आ रहा है? ग्रेट. एवरी वन ऑफ अस वी कैन सी कि एक पूरा रिंग है और हमें एक चीज नजर आ रही है कि जो सेंटर ऑफ द रिंग है ये कंपैरेटिवली स्पेयर्ड है. हमें नजर आ रहा है कि डिजीज की जो ज्यादा एक्टिविटी है वो किधर है? वो मार्जिन्स के ऊपर है. दिस इज हॉलमार्क ऑफ द टीनिया. फंगल इन्फेक्शन का ये हॉलमार्क है. अगर हमें कुछ भी याद नहीं रहता तो प्राइमरीली फंगल इन्फेक्शन में हमें एक चीज नजर आती है. जरूरी नहीं कि वो रिंग बिल्कुल गोल ही हो, उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें सेंटर नजर आता है जो कंपैरेटिवली क्लियर है और हमें नजर आता है कि जो डिजीज की एक्टिविटी है वो मार्जिन्स के ऊपर ज्यादा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंगस इज नॉट द ओनली थिंग जिसके अंदर ये प्रेजेंटेशन नजर आती है. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. दैट इज फ्रॉम वेयर वी आर बेसिकली लीडिंग आवरसेल्फ टू ऑल दैट रेजिस्टेंस. मसला यही होता है कि डर्मेटोलॉजी के अंदर, स्किन के अंदर जो देखने वाली आंखें हैं उन्होंने फैसला करना है कि ये क्या चीज है. चीजें में मिमिक्री बहुत ज्यादा है एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू ओवरकम. और वो कब ओवरकम होगा? जब हम उसको पढ़ेंगे, जब हम उसको देखेंगे, जब हम उसको प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे. अभी इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर फ्यू मोर केसेस. यू कैन सी ऑल दीज आर वेल डिमार्केटेड लीजन्स और इनकी जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर एक्टिविटी ज्यादा है, इसके सेंटर में एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है. अभी मैं आगे और भी इसको डिस्कस करता हूं. लेट्स डिस्कस दिस लीजन. अगेन वी कैन सी कि यहां पे मार्जिन्स के ऊपर भी एक्टिविटी है, थोड़ी बहुत सेंटर में भी है, लेकिन सेंटर कंपैरेटिवली क्लियर्ड है एज कंपेयर टू द मार्जिन्स. लेट्स फॉरगेट अबाउट टीनिया. और क्या हो सकता है? ये ग्रेट सोराइसिस हो सकता है. ग्रेट. और एक्जिमा हो सकता है, LSE हो सकता है. ग्रेट, जबरदस्त. और क्या हो सकता है? सॉरी, लाइकन प्लेनस हो सकता है. वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट. और क्या हो सकता है? इट कैन बी सार्कोइडोसिस, इट कैन इवन बी कैंसर. ये कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी MF, माइकोसिस फंगोइडिस हो सकता है. अब इशू ये है कि अगर मैं इसको लूं बिटवीन एक्जिमा एंड फंगल इन्फेक्शन, entire paradigm of the treatment is changed. If I take it as eczema, treatment is entirely different. If I take it as fungal, treatment is entirely different. So पहले तो मुझे ये अपने आप में श्योर होना है कि ये क्या चीज है. अब देखें कि अगर हमें किसी जगह कंफ्यूजन है, किसी को भी हो सकती है, हम सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, हमें बहुत मतलब आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आई फील नो शेम इन सेइंग कि बहुत दफ़ा मुझे नहीं कंफर्म होता. जाहिर सी बात है, ये हमारी ह्यूमन उसमें जो है ना वो शॉर्टकमिंग है कि हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते हैं. एंड दिस इज हाउ द मेडिसिन वर्क्स, दिस इज हाउ वी वर्क इन मेडिसिन. सो अगर हमें कंफर्म नहीं है, अगर हमें श्योर नहीं है कि ये टीनिया है या ये एक्जिमा है, लेट्स फॉरगेट अबाउट सोराइसिस एंड ऑल दीज थिंग्स. देखिए, अगर ये एक्जिमा है तो आई नीड टू गिव सम स्टीरॉइड, हल्का या पोटेंट, वो बात की बात है. एंड इफ दिस इज सम फंगल इन्फेक्शन, आई नीड टू गिव सम एंटी फंगल. अगर कंफ्यूजन है तो मेजॉरिटी क्या कहती है, क्या करना चाहिए? डर्मोवेट NN. सर इसके अलावा कोई ऑप्शन? कॉम्बिनेशन. ग्रेट सर, कॉम्बिनेशन में क्या देना चाहेंगे आप? कोई एंटी फंगल साथ में स्टीरॉइड कौन सा देना चाहेंगे? ट्रेवोकॉर्ड दे देंगे. ओके, ठीक. और किसी की तरफ से कोई ऑप्शन? सर एग्री.
ग्रेट, मतलब कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर आपको डाउट है तो कंफर्म करने का, लेट इट बी बायोप्सी और समथिंग एल्स, जो भी है, लेकिन वी कैन इन्वेस्टिगेट। लेकिन सपोज अगर आपके पास पेशेंट, माशाल्लाह आप लोग मेजॉरिटी जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो आप लोगों के पास तो लाइनें लगी हुई होती हैं। हम लोग तो गिने चुने थोड़े से मरीज देखते हैं पर डे, लेकिन जीपीज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको बहुत ज़्यादा सोचे और बहुत ज़्यादा हर पेशेंट की बायोप्सी करवाएं या हर पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाएं। तो अगर हमें कन्फ्यूजन है, दिस इज़, अगर मैं ये समझता हूँ कि आज मेरी इस 10-15 मिनट की डिस्कशन के साथ हम अगर ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लेते हैं ना कि हमने मरीज़ का नुकसान नहीं करना और अननोइंगली जो हम नुकसान करते हैं उसको कैसे हमने कम करना है, मैं समझता हूँ मेरे यहाँ आने का पर्पस पूरा हो जाएगा। एंड दिस इज़ what is already happening in the community और in the field, कि होता यही है कि अगर हम इसमें, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर मैं इसमें बीटामेथासोन लगवाता हूँ, अगर मैं इसमें क्लोबीटासोल लगवाता हूँ विच इज़ पोटेंट एंड सुपर पोटेंट स्टीरॉइड, वो वक्ती तौर पे तो मरीज़ बड़ा खुश हो जाएगा, क्योंकि स्टीरॉइड आप किसी भी इन्फेक्शन के ऊपर लगवाएं, स्टीरॉइड इंजेक्शन दें आप किसी भी सिस्टमिक इन्फेक्शन के अंदर, तो एक दफ़ा तो वो सारा एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से बिल्कुल सूत्र कर देता है मरीज़ को। लेकिन मसला ये है कि जब वो मरीज़ उसको छोड़ेगा तो हम क्या करने जा रहे हैं पेशेंट के साथ, वो इन्फेक्शन पहले से मैनी फोल्ड ज़्यादा होकर सामने आने वाला है, और मैं समझता हूँ ये वो जाती है जो हम मरीज़ के साथ करते हैं। सो अगर मैं दोनों में कन्फ्यूजन है, और अगर मैं, जैसे आप में से बहुत सारे वर्दी सीनियर्स ने मेंशन किया कि हम कॉम्बिनेशन देना चाहेंगे, वैसे बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट वी डू नॉट रिकमेंड कॉम्बिनेशन, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट वी आर अगेंस्ट कॉम्बिनेशन, जल्दी हम कॉम्बिनेशन की तरफ नहीं आते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, मेरी या मेरे जैसे बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट की देखने की आंख डिफरेंट है, जो प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी आंख डिफरेंट है, और ये ऐसा ही है, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने इतनी ज़बरदस्त टॉक की, वो उसमें सर ने जो सर्जरीज की वो हो सकता है उनके लिए रोज़ का काम हो, मेरे लिए दैट वाज एन एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। तो हर बंदा अपनी फील्ड में अपने मुताबिक काम करता है, लेकिन अगर हमें कभी कन्फ्यूजन होती है ना, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि प्योर एंटी फंगल दे के देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 2 दिन वो और खुजा लेगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर हम उसको स्टीरॉइड दे के उसका नुकसान करेंगे तो वो शायद चीज़ हमें हमारे ही गले पड़ेगी। वही मरीज़ हर 2 हफ्ते बाद आपके पास आता रहेगा, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा। एंड अव्वल तो खैर ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि पहले तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट। अगर हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो ट्राई टू गिव समथिंग। अगर कॉम्बिनेशन देना भी है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन दें। वाई वुड टू गिव क्लोबीटासोल, वाई वुड टू गिव बीटामेथासोन? इतने स्टीरॉइड, इतने हैवी, इतने पोटेंट, सुपर पोटेंट, आमतौर पर हमारी कोशिश होती है कि हम ना दें। सिमिलरली दिस इज अनदर केस, ये प्रेजेंटेशन है, टीनिया क्रूरस नाम से पता चल रहा है, जाहिर सी बात है ये कौन सा एरिया इन्वॉल्व कर रहा होगा, ग्रॉइन एरिया। ग्रॉइन एरिया के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन है वी कॉल इट एज टीनिया क्रूरस। दीज आर फ्यू ऑफ द केसेस यू कैन सी। फंगस को ट्रीट करना हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पे नहीं है, वो हर जगह पे है। ये मैंने एक बहुत ही मुख्तसर सी लिस्ट बनाई है, लिस्ट इससे मैनी फोल्ड ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये वो कॉमन चीज़ें हैं विच वी मस्ट कीप इन आवर माइंड व्हेन वी सी अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड टीनिया, विद सस्पेक्टेड फंगल इन्फेक्शन। और टॉप ऑफ द लिस्ट आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ें ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं। सोराइसिस है, लाइक्यूम टेनस है, अर्टिकेरिया, डिफरेंट टाइप के एरिदीमाज हैं, एक्जिमाज हैं, पीआर हो सकता है, एम्पेटाइगो हो सकता है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने माइंड में रखनी है इफ़ वी वांट टू ट्रीट पेशेंट विद स्किन इन्फेक्शन और स्पेसिफिकली फंगल इन्फेक्शन। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये आप देख रहे हैं, अब अगर ये वाला पेशेंट हमारे पास आता है तो दिस इज, इसमें हमें नजर आ रहा है ना कि थ्रू आउट पूरे का पूरा लीजन जो है वो एक्टिवली हमें नजर आ रहा है कि एक जैसी इन्वॉल्वमेंट, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मार्जिन्स के ऊपर ज्यादा एक्टिविटी है और सेंटर जो है वो कंपैरेटिवली क्लियर है, और जो स्केल हमें नजर आ रहे हैं वो सिल्वरी स्केल्स हैं। तो दिस इज टिपिकल ऑफ सोराइसिस। ऑब्वियसली इस केस में वी विल गिव सम स्टीरॉइड, एंटीफंगल इज नॉट गोइंग टू वर्क। स्टीरॉइड के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली एंटीफंगल्स इज नॉट द ऑप्शन। ये सारे के सारे छोटे छोटे फाइन शाइनी पैप्यूल्स हैं, वॉयलेशियस कलर के हैं। सो दिस इज मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ, दिस इज अ केस ऑफ लाइकन प्लेनस, दिस इज अ केस ऑफ लाइकन प्लेनस। अगर हम में से कोई इसको सोराइसिस भी कहता है, इक्वली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने बाकी मरीज को देखना होता है और फिर हम उसको डिसाइड करते हैं। लेकिन सिंस आई नो कि मैंने तस्वीर किस मरीज की ली हुई है, तो ये है पेशेंट एलपी का। सिमिलरली दिस इज एक्जिमा, अगेन वेरी सिमिलर टू दैट। अगेन दिस इज eczema with secondary bacterial infection, this is eczema with secondary bacterial infection। तो इसमें हमें एंटीबायोटिक भी देनी है और साथ हल्का सा स्टीरॉइड भी देना है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों को कवर करना है।
देन वी हैव, अगर फंगल इन्फेक्शन सर के ऊपर हो जाती है तो वो टीनिया कैपिटस है। इस मरीज के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा, मैं अगर कहूँ कि जुल्म करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हमें क्या कुछ नज़र आ रहा है, हमें पस नज़र आ रही है, हमें यहाँ पे इरोजन्स और छोटे छोटे कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं जहाँ पे हेयर लॉस हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीपिंग, ऊजिंग, जब हमें ये सारा कुछ नज़र आता है ना तो हम एकदम घबरा जाते हैं, और घबराहट में सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी तरीके से ये जो इन्फ्लेमेशन है इसको रिड्यूस करें, और उसके लिए फिर हम अगेन स्टीरॉइड देते हैं। सो वी नेवर नीड टू गिव स्टीरॉइड। दिस इज अ केस ऑफ टीनिया कैपिटस, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी इन्फेक्शन कवर करने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं, दैट्स इट, एंटी फंगल विद एंटीबायोटिक। सो आई हैव टू गो थ्रू इट इन अ स्पीड बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन। अगर ये पाँव के ऊपर है तो ये टीनिया पेडिस है, दिस इज अगेन वेरी कॉमन। और एक चीज़ याद रखें कि सिर्फ दवाई काम नहीं करती, प्लीज़ गिव 5 मिनट्स टू द पेशेंट। अगर आप इस मरीज़ को ये नहीं समझाएंगे ना, ये जो टीनिया पेडिस वाला, कि आपने पाँव को खुश रखना है, साफ रखना है, गीले पाँव के ऊपर आपने सॉक्स नहीं पहननी है, तो जो मर्जी ट्रीटमेंट हम दे दें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, वी नीड टू काउंसल द पेशेंट। ये नेल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के फंगल इन्फेक्शंस हैं, आई हैव टू गो थ्रू इट अर्लियर इन अ बिट हरी। ये कॉमन डिफरेंशियल्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे फंगस इन्फेक्शन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाती है, तो हमें साथ में एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ती हैं। अगर टीनिया इनकॉग्निटो क्या होता है, बाजू का स्टीरॉइड लगवा के उसकी शक्ल ही बिगड़ जाती है, वो पता ही नहीं चलता कि ये फंगल इन्फेक्शन है भी या नहीं। सो उस केस में हमने स्टीरॉइड बंद करके थोड़ा वेट करना होता है ताकि उसकी असल शक्ल वापस आ जाए, हमें पता तो चले कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और है। सिमिलरली ये मेजुकी ग्रैनुलोमा बन सकता है, आई डिरप्शन हो सकती है, दिस इज सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद प्राइमरी टीनिया। ये कहीं से भी उस तरह की टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं है कि मार्जिन्स के ऊपर एक्टिविटी हो और सेंटर क्लियरिंग हो, बिकॉज ऊपर स्टीरॉइड लगे हुए हैं तो उसकी शक्ल ही बदल गई है। वी कॉल इट एज टीनिया इनकॉग्निटो। ये मेजुकी ग्रैनुलोमा थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में बात चली जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये एक चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो दैट वुड बी मैसेज ऑफ द डे, कि जिन लोगों को टीनिया पेडिस होता है, जिनके इन्फेक्शन होती है फंगस वेब्स के ऊपर, आमतौर पे उनके हाथों पे छोटे छोटे दाने बनते हैं और वहाँ खारिश होती है, तो हम ये समझते हैं शायद ये अलग डिजीज़ है, वो अलग डिजीज़ है। ऐसा नहीं होता। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि एक डिजीज़ का फोकस किसी और जगह पे है और रिएक्शनरी तौर पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी और जगह रिएक्शन दे रहा होता है। इसको हम कहते हैं आई डिरप्शन। दिस इज़ कॉल्ड आई डिरप्शन। तो ये प्राइमरीली जब आप प्राइमरी इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो ये खुद ही साथ में ठीक हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल की जा सकती हैं, दीज आर कॉमन रीजंस, जैसे मैंने भी बताया कि प्रॉपर डायग्नोसिस ना होना, प्रॉपर तरीके से री इन्फेक्शन हो सकती है, इनएडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट को हम ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ सकती है। सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स विच वी कैन ओवरकम अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। और सिंस रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो ये फिरोसन्स ने एक नया सॉल्ट निकाला हुआ है, ऑक्सीकोनाजोल। And thank you very much for the patient listening. Thank you.